हाय गाइस, आज हमारा चौथा दिन है। हम बीजिंग से अभी झांगजीजाई जा रहे हैं। अभी हम बीजिंग एयरपोर्ट पे है और हमारे जो गाइड है मिस्टर टोनी, वो हमें अप टू चेक इन काउंटर तक लेके आए हैं। ये टीसीटी एकदम बढ़िया सर्विस प्रोवाइड करते हैं गेस्ट को। एयरपोर्ट पे सब फैसिलिटीज़ है, जैसा हॉट और कोल्ड पानी का डिस्पेंसर है। अभी हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। ये एयर चाइना का फ़्लाइट था और बीजिंग से झांगजीजाई 2.5 घंटे का सफ़र है। अच्छा सफ़र था, कोई इशू नहीं था। अभी हम झांगजीजाई एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। ये हम नज़ारा अगले 1-2 दिन में देखने वाले हैं। सामान लेके हम बाहर निकले। बाहर में हमारी जो गाइड है मिस एस्थर, हमारी वो राह देख रही थी प्लेकार्ड लेके। उन्होंने हमें ग्रीट किया और अभी हम एयरपोर्ट से होटल के लिए जा रहे हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब है। सभी लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे से एकदम पोलाइट रहते हैं, बहुत अच्छे बिहेव करते हैं। ये हमारी बिजनेस क्लास गाड़ी है टूर के लिए पूरा। They are taking care of us very well. अभी हम हमारे होटल में पहुंच गए हैं। एक सीनिक स्पॉट सनशाइन होटल इसका नाम है। एक रिसोर्ट सॉर्ट ऑफ होटल कहा जाता है। ये हमारा होटल रूम है, बहुत बढ़िया था, काफ़ी स्पेशियस था, उसके साथ बालकनी भी थी। अभी हम एक शो के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है फेरी फॉक शो। ये जो नज़ारे बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे ऑन द वे ग्लिटरिंग, सब जगह ग्लिटरिंग चालू रहता है पूरे शहर में। Fairy Fox Show, it's called Tiananmen Fox Fairy Show, also known as the New Liu Hai and the Golden Fox. It is grand open-air musical and dancing spectacle, often described as a real scene musical drama. It is staged against the natural backdrop of the mountains and canyon of Tiananmen Mountain in Zhangjiajie, Hunan Province, China.
The show narrates an epic and moving Chinese folk love story between woodcutter named Liu Hai and thousand-year-old fox spirit. Their love transcends the boundaries between human and spirit, and the plot is divided into 5 emotional acts. Famous for its massive scale, utilizing the mountains and valleys as its stage, with a cast of over 500 performers and incorporating elaborate machinery, lighting effects and special effects like a 60-meter high flying bridge and a movable artificial moon. Performance is infused with local ethnic culture elements including Tucha folk song and dances and human tradition. गुड मॉर्निंग, डे 5। अभी हम लोग ग्लास ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। ये एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज है और यहाँ पे ये ग्लास ब्रिज चलने के लिए ये आपको सॉक्स कवर डालना पड़ता है। ग्लास ब्रिजेस and skywalks are modern architecture marvels designed to offer tourists a thrilling experience with unparalleled views. Often set against dramatic natural backdrops, they are constructed with high-strength, multi-layered, tempered or laminated glass for safety. The concept has resulted in several record-breaking and world-famous attractions primarily in Asia and North America. This is one of the world's most famous glass bridges. It is approximately 430 meters, approximately 1,410 feet long, 6 meters wide and hangs about 300 meters, 984 feet above the canyon floor. It was once considered the longest and highest glass bottom bridge in the world. The surrounding landscape famously inspired the floating mountains in the movie Avatar. It's a horseshoe-shaped cantilever bridge that extends 70 feet out over the rim of the Grand Canyon. The skywalk is suspended roughly 4,000 feet above the canyon floor, offering dramatic bird's eye view. Special shoe covers are often required to protect the glass from scratches. There are various dangerous activities here like zip line, cliff walking, then sky ladder, etc. etc. But due to age factor above 60, they are not allowing to do these activities. This is the cliff. People are walking on this small cliff. It's most dangerous activity. यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि जो वर्ड में अपन बयान नहीं कर सकते। इस पे चलना एक अद्भुत अनुभव है। वो अनुभव लेने के बाद ही समझ में आता है। ये बंगी जंपिंग का सबसे हाईएस्ट
पॉइंट है जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऐसा बोला जाता है। हमने ये चाइनीज लोगों के साथ मस्त डांस किया। हमें डांस नहीं आता है लेकिन हमने ट्राई किया। I will dance. Okay. यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो आपको दिखा रहे हैं। ये जिप लाइन है। दुनिया का सबसे ऊंचा और लंबा जिप लाइन इसे बोला जाता है, लेकिन हमें करने को नहीं मिला क्योंकि एज फैक्टर यहाँ पे आता है। अबव 60 यहाँ पे अलाउड नहीं, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, ऐसा डेंजरस एक्टिविटी करने अलाउड नहीं है। ये जो स्लाइडिंग रहता है ये एक अलग ही किस्म का एक्टिविटी है। आप जिप लाइन से आएंगे तो और नीचे जाने के लिए स्लाइडिंग रहता है। ये इसका कंट्रोल अपने हाथ में ही रहता है, ग्लोव्स डालने पड़ते हैं और वो हाथों से ही अपना ब्रेक वगैरह सब लगता है। ये सबसे डेंजरस एक्टिविटी है। इसको क्लिप वॉकिंग बोलते हैं और इस पे से चलना पड़ता है और नीचे तक उतरना पड़ता है। नीचे में 1000 फुट खाई है और छोटे से इस पर चलना पड़ता है। और ये विंग सूट फ्लाइंग है। ये बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि इसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है। उसका खर्चा भी 4-5 लाख रुपए रहता है, तो ये बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे ये एक्टिविटी होती है। और ये स्काई लैडर है। ये स्काई लैडर भी बहुत बढ़िया एक्टिविटी है, लेकिन वो अपने लिए नहीं रहता है, वो सब यंग लोग करते हैं। अभी दोपहर के टाइम हम दूसरे अट्रैक्शन पे जा रहे हैं। इसको अवतार माउंटेन बोलते हैं। अट्रैक्शन पे जा रहे हैं। इसको अवतार माउंटेन बोलते हैं। और हम जो केबल कार से जाने वाले हैं वो दुनिया का सबसे लंबा केबल कार कहा जाता है। हमारे पास वीआईपी पास होने के कारण हमें कोई भी क्यू में लगना नहीं पड़ता है। डायरेक्ट हम एलिवेटर से ऊपर तक जाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट हम केबल कार में बैठ के सीधा अवतार माउंटेन पहुँचते हैं। हमारे साथ हमारी गाइड एस्तर हमेशा रहती थी, इसलिए हमें कोई चिंता ही नहीं थी। वो लोकल है इसलिए उसको सब मालूम रहता है, उनके लिए रोज़ का काम रहता है, तो हमें तो एक पैसे का भी तकलीफ नहीं हुआ। We were quite happy about their services.
और ये 7.5 किलोमीटर का लंबा ये केबल कार है, केबल कार का है, और 30 मिनट लगते हैं यहाँ से, और ये पूरे शहर से ही जाता है यहाँ से। नीचे रास्ते पे से गाड़ियाँ जा रही है और ऊपर से केबल कार जा रहा है। हम लोग बिल्डिंग के ऊपर से भी जा रहे हैं। बहुत अलग नज़ारा है ये, ऐसा नज़ारा कहीं पे भी देख नहीं सकते हम लोग केबल कार से। अद्भुत नज़ारा है ये, चाइना में ही बन सकता है पूरा ये सब। 7.5 किलोमीटर का केबल कार, यानी वैसा तो 30-40 किलोमीटर होगा, लेकिन केबल कार से वो सिर्फ 7.5 किलोमीटर हो जाता है और आधा घंटा लगता है केबल कार पहुंचने के लिए। हमारे साथ बाकी जो लोग बैठे थे वो भी हमसे बात कर रहे थे। उनको इंग्लिश नहीं आता था, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा सा पूछ रहे थे, तो एक्शन और हमारी जो गाइड उनको ट्रांसलेट करके देती थी, तो अच्छा लग रहा था उनके साथ इंटरेक्शन करके। बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत फ्रेंडली है वे लोग। The mountain's highest point is approximately 1518.60 meters, approximately 5,000 feet above sea level. The primary way to ascend is via the Tianmen Mountain Cableway, which is one of the longest high mountain passenger cable cars in the world. Narrow paths built into the side of the vertical cliffs providing dazzling views. Several sections of the cliff path are made entirely of glass, offering a thrilling sensation of walking on air over a sheer drop. Large Buddhist temple on the summit, originally built during the Tang dynasty and reconstructed in the 20th century. अभी हम पहुंच गए हैं टियामेन माउंटेन पे। टियामेन माउंटेन हेवंस गेट माउंटेन भी कहा जाता है। ये इतने ऊपर माउंटेन में भी इन लोगों ने पूरा पाथवे बनाया है लकड़ी से बना के, तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अजब गजब है, आउट ऑफ वर्ल्ड है, ऐसा कहा जाएगा तो भी चलेगा। प्रॉपर पाथवे है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफ़ी फॉगी था, तो उसमें जो पहाड़ जो थे वहाँ बहुत हमें अच्छा साइट नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसा जैसा धूप बढ़ता था तो साइट दिखने लग गया था। ये एक नेचुरल वंडर है यहाँ का, और इसका अनुभव बहुत ही रोमांचित था।
अभी हम लंच ब्रेक के लिए यहाँ आए। यहाँ बर्गर किंग वगैरह था, लेकिन यहाँ सिर्फ अपने को खाने के लिए, यानी जो वेजिटेरियन है उनके लिए सिर्फ फ्रेंच फ्राइज रहता है। बाकी इनका जो बर्गर वर्गर रहता है वो भी उसमें क्या डालेंगे पता नहीं सकते, तो हम सभी लोगों ने अवॉइड किया, हम लोग खाते ही नहीं। तो हमने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज लिया और हमने घर से जो लाया था वही हमने वहाँ पे खाना खाया। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है, पूरा लकड़ी से बांध के रखा है, कहीं पे भी मिट्टी नहीं दिखती है, ना गंदगी दिखती है। यहाँ से ऊपर गेट ऑफ हेवन का ऊपर से व्यू है, क्योंकि नीचे से 999 स्टेयर से ऊपर जाने के लिए। और ये गेट ऑफ हेवन एक अद्भुत नज़ारा है और यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शंस है। ये जो केबल कार है ना, ऐसे लग रहा है कि पाताल में जा रहे हैं हम लोग। ये ऊपर से, यानी जो पहाड़ों से बीच में ये सब बनाए हुए हैं, ये कम से कम 1-1 किलोमीटर के ऐसे 15 इन्होंने एलिवेटर्स बनाए हैं। फुल्ली एसी है, यानी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ बोलने की बात ही नहीं है। और ये भी वन वे है, यानी एक आगे आने के लिए जाने के लिए। ऐसे 15 एलिवेटर 1 किलोमीटर के ऊपर से नीचे तक जाने के लिए है। रियली ग्रेट। अभी हम ऊपर से गेट ऑफ हेवन के तरफ जा रहे हैं। फॉग होने के कारण नीचे का कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं तो ऊपर से बहुत बढ़िया नज़ारा दिखता था। ये हम गेट ऑफ हेवन से ऊपर में आए हुए हैं, ऊपर के साइड में। अब जब हम नीचे जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि कितना खूबसूरत और वहाँ कहाँ थे हम लोग। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली फॉग के कारण हम पूरा दिखा नहीं सकते। ये नीचे से गेट ऑफ हेवन का नज़ारा है। वहाँ हम खड़े थे पहले, जो हमें यहाँ से नीचे का दिख नहीं रहा था। अभी फॉग जाने के कारण ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल गया। यहाँ हमने बहुत फ़ोटो शूटो किए। आज का दिन तो बहुत बढ़िया था, एकदम मज़ा आ गया। अभी हम दूसरे दिन के लिए जा रहे हैं। दूसरे दिन में भी हमें अभी टियानमेन माउंटेन जाना है, जिसको अवतार माउंटेन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवतार मूवी का शूटिंग हुआ था। तो होटल की कन्वीनियंस स्टोर्स में से हमने ब्रेड और जो भी वेजिटेरियन था खाने लंच के लिए हमने लेके गए थे। वहाँ पे ब्रेड था, फिर बाद में केक्स वगैरह थे। ये नेशनल पार्क बोलते हैं इसको। वहाँ पे गया और वहाँ पे गाना शुरू था, बढ़िया। मैं शूटिंग कर रहा था, इसलिए वो ज़्यादा फॉर्म में थी, ज़्यादा ज़ोर से गाना गा रही थी। यहाँ जो भी फॉरेनर होते हैं उनके लोग बहुत भाव देते हैं, उनको काफ़ी इम्पोर्टेंस भी देते हैं। और यहाँ इंडिया को सब इंडू बोलते हैं, इंडू। इंडिया नहीं कोई बोलता है, इंडू से आया क्या ऐसा पूछते हैं। यहाँ से हमें बस से जाना पड़ता है एक जगह, उसके बाद दूसरा बस पकड़ना पड़ता है। टेन माइल नेचुरल गैलरी के वहाँ आए। ये एक क्यूट सी ट्रेन है। ये 5 किलोमीटर का एरिया में जाती है। कोई लोग यहाँ से वन साइड ट्रेन में जाते हैं, आते समय पैदल आते हैं। पैदल आने के लिए भी साइड वॉक उन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो पिलर्स बोले जाते हैं, इसका हर पिलर का इन्होंने कुछ मतलब बताया है।
और यहाँ का ये स्ट्रीट फूड है, काफ़ी साफ सुथरा स्ट्रीट फूड है सब, कोई गंदगी नहीं दिखेगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लोग बहुत खाते हैं, ये सब स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है यहाँ पे। यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है झांगजाई जी का, ये ट्राइबल ड्रेस बोलते हैं इनको। और ये जो पीछे में है वो 3 सिस्टर पिलर्स बोलते हैं उसको, इसकी भी वो कहानी है जो यहाँ मैं बता नहीं सकता हूँ। यहीं पे भी हमारा वीआईपी पास होने के कारण हमें कोई भी क्यू में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट एंट्री था सब जगह। और हमारी गाइड अस्तर हमें पूरा गाइड कर रही थी प्रॉपरली। ये जो है ना, ये नज़ारा बहुत खूबसूरत है, ये आउट ऑफ वर्ल्ड नज़ारा है। देखो ये हम लिफ्ट गए थे एलिवेटर से, और एलिवेटर का जब ऊपर जाते हैं तो ये नज़ारा है नहीं, ये एक्चुअल जब देखेंगे ना तो इतना मज़ा आता है कि दुनिया में इससे बेहतर कोई भी नज़ारा नहीं, ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है। जो एलिवेटर से बाहर का नज़ारा है वो अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। इतना मज़ा आता है ना वो देखने में कि क्या बोलूँ, पैसा वसूल है ये नज़ारा। इसको झांगजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क कहते हैं। हमें बताया गया यहाँ पे टोटल 3100 ये पिलर्स है। यहाँ पे हमने ड्रोन शॉट लिया है, वहाँ पे ड्रोन अवेलेबल था तो हमने वो ड्रोन शॉट लिया है, बहुत मज़ा आया इसे। The Avatar mountains are real and the actual location is one of the most magnificent and unique landscape on earth. They are officially located in the Zhangjiajie National Forest Park in the Hunan province of China. This park is part of the larger Wulingyuan Scenic and Historic Interest Area, which was designed a UNESCO World Heritage Site in 1992. The park is dominated by over 3,000 narrow towering, many of which rise over 200 meters in height. These are the unusual rock formations that inspired the fictional world of Pandora. To commemorate the connection and boost tourism, one of the most recognized peaks, formerly known as the Southern Sky Column, was officially renamed Avatar Hallelujah Mountain. हमने अभी हमारा लंच शुरू किया। ये एक हमने रेडी टू ईट
पाव भाजी लिया था, इसमें गर्म पानी डाल के साथ में जो हमने ब्रेड्स लिए वो लेके हमने शुरू किया। खाना बहुत अच्छा नहीं था, ठीक था, खाने लायक था। और बाकी फ्रूट्स वगैरह, बाकी घर के जो चीज़ थी वो सब लेके आए थे, तो वो काम चल गया उसमें। ये हमारा वीआईपी रहने के कारण हमें ज़रा रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे। हमें बग्गी बिग्गी सब प्रोवाइड किया था और हमारा ये ख़त्म हो गया, वापस आ गए। अभी हम जा रहे हैं एक नए पॉट में रात के नज़ारे देखने के लिए, जिसको 72 स्टोरी ब्यूटी बोलते हैं। तो ये हमें देखना था, तो रात के 8 बजे ये लाइट शुरू होते, तो हम ये देखने के लिए आए यहाँ पे। यहाँ पे हमने फ़ोटो निकाला। ये एक इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग साइट है और ये काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम पे, काफ़ी फ़ोटो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये हमारा आज का ये एपिसोड भी ख़त्म हो रहा है। गुड नाइट, अगले एपिसोड में मिलेंगे। हमारे जो अभी के जो 2-3 दिन थे बहुत ही यूनिक थे, क्योंकि यहाँ पे आना कोई भी इंडियन टूर कंपनी ये स्पॉट पे लेके नहीं आती है, तो इसलिए हमें ये कस्टमाइज़ करके आना पड़ा। और हमारे जो गाइड थे वो एकदम हाई क्वालिटी के थे और वो जो भी बताते थे अपने कल्चर के बारे में और अपने कंट्री के बारे में बहुत प्राउडली फील करते थे। और हमें उन्होंने बहुत अच्छे तरफ से ख्याल रखा, हमारा बहुत केयर लिया और जो भी हमारी इच्छा थी, हम जो बोलते थे वो फुलफ़िल करते थे। जैसा हम थक गए तो हम वापस जाना चाहते होटल में रहने के लिए, तो वो सब करते थे। अभी आप नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।